आज क्लास 11th के लिए सब्जेक्ट हमारा जो है जियोलॉजी है। टॉपिक जो है आज हाउ टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए मिनरल। फॉर दिस, फॉर फाइंडिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए मिनरल, especially for smaller minerals, Joly's spring balance is used to determine the specific gravity, while as for the larger minerals, Walker's Steel-Yard balance is to be used. So we will discuss today Joly's spring balance, which help us to determine the specific gravity of smaller minerals. Since the specific gravity of smaller fragments of a mineral is determined by Joly's balance, how it works? As you know, the instrument consists of weak suspended spring. Number one. Number two, which is vertically graduated against a mirror scale. This is a mirror scale, right? Then the two scale pans, one below the other. That means upper scale pan and lower scale pans are used in this spring balance. So a lower pan, the lower one is connected rather at the attached at the lower end of the upper scale pan. Though both these scale pans are attached to this weak suspended spring. First of all, before putting any fragment into the scale pan, mineral fragment to say, we initially take the reading without putting any mineral specimen. First of all, we take the reading as A on the scale without putting anything into the pans, because as per this balance only it is adjusted with one scale pan. The next scale pan weight to balance the weight of the another scale pan, we take first of all reading A, and then a small piece of mineral is put into the upper scale pan. When we put the mineral specimen into the upper scale pan, then we take the second reading as B. Now we have taken two readings, A reading and then B. A is at that particular time taken when there is no mineral fragment, and B is taken when we put the mineral specimen in the upper scale pan. So the next, then this mineral specimen, after taking reading B, the mineral specimen is transferred to lower scale pan, that scale pan which is immersed in water, next scale pan below. So then we take the reading as C. Now we have taken three readings, A, B and C. Since reading A is taken at that time when there is no mineral fragment in this scale. After that, I will repeat, we put the mineral specimen in the upper scale pan, then the reading B is taken, means some value is for B, and after transferring the same mineral specimen from the upper scale pan to lower scale pan, then the reading C is taken. So after taking these readings A, B and C, the specific gravity of the mineral is determined as follows. Specific gravity is equal to B minus A divided by B minus C. It means that the ratio of the weight of mineral in air with the ratio means to the ratio with the weight of mineral in water. So this is the procedure for
finding the specific gravity or for determining the specific gravity of a mineral. If we will try to understand in a simple language, in Urdu language, how we can make this procedure. पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास छोटे मोटे जो मिनरल स्पेसिमेन होते हैं उनके लिए हम जॉली स्प्रिंग बैलेंस इस्तेमाल करते हैं. नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2 पॉइंट, ये जो हाउ इज द कंस्ट्रक्शन, हाउ इज इट मेड. ये जो जॉली स्प्रिंग बैलेंस है इसमें एक वीक स्प्रिंग, एक कमजोर सा लटका हुआ स्प्रिंग होता है. उस स्प्रिंग के साथ दो पेन्स लगे होते हैं, वन बिलो द अदर. एक पेन ऊपर कनेक्ट होती है और दूसरी पेन नीचे कनेक्ट होती है. इस स्प्रिंग बैलेंस, ये स्प्रिंग जो होता है इट इज अगेंस्ट द मिरर स्केल. इस मिरर स्केल में जो बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 वगैरह इसमें रीडिंग लगी होती है, सो दैट वी कैन सी द वेट ऑफ ए मिनरल. इससे हमें पता चलता है कि किस वेट, कौन सा वजन, मिनरल का कौन सा वजन है इस स्केल पेन, इस स्केल की वजह से. सो ये जो अपर स्केल पेन, बिफोर पुटिंग द मिनरल पहले वाले स्केल पेन में डालने से पहले हम खाली स्केल को वजन करते हैं. दैट इज वाई, क्योंकि ये जो हमारा एक्स्ट्रा पेन जो होता है कनेक्टेड इसके साथ, उसका वजन बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द रीडिंग एज ए विदाउट पुटिंग द मिनरल. हम तब तक कोई मिनरल स्पेसिमेन इसमें नहीं डालते हैं. जब हमने वजन लिया तो उस वजन को हम ए रीडिंग के नाम से जाने जाते हैं, रीडिंग ए में डालते हैं. फिर जब हम इस स्केल पैन में मिनरल स्पेसिमेन डालते हैं तो फिर हम इसकी रीडिंग लेते हैं. से कोई रीडिंग आती है, उस रीडिंग को हम बी कहते हैं, दैट मीन्स सेकंड रीडिंग. उसके बाद हम मिनरल को ट्रांसफर करते हैं, इस स्केल पैन से उठा के इस स्केल पैन में मिनरल को डालते हैं. दैट मीन्स आफ्टर टेकिंग रीडिंग ए एंड बी, जब हमने 2 रीडिंग ली है उसके बाद हम तीसरी रीडिंग लेकिन तब लेते हैं जब हमारी नीचे वाली स्केल पेन जो पानी में एदर फुली और पार्शली इमर्ज्ड इन वाटर, जो जिस तरह से आर्चिमिडीज का प्रिंसिपल फिजिक्स में है, जो बायोएंट फोर्स होता है वो उसको नीचे से पानी जो है धक्का देता है, क्योंकि उतना ही पानी डिस्प्लेस होता है जितने बॉडी में वजन होता है, एज पर द आर्चिमिडीज प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स. सो हम वहां जाने के बजाय अगर हम ये देख लेंगे कि हमने जब ट्रांसफर किया है मिनरल स्पेसिमेन दूसरे जो हमारी पेन है, लोअर पेन है, स्केल पेन, उसमें जब हम डालते हैं तो तीसरी रीडिंग सी ले लेते हैं. इस तरह से क्या, खाली स्केल के लिए हमने ए, फिर जब हमने ऊपर वाले स्केल पेन में, अपर स्केल पेन में जब मिनरल स्पेसिमेन डाला तो अपर पेन में जब हमने स्पेसिमेन डाला तो हमने बी ले ली. लोअर स्पेसिमेन में हमारा जब ये सैंपल था तो हमने सी ले ली. और फाइनली हमने क्या किया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला जो बना है उसमें हम जो दूसरी रीडिंग बी को हम वो वजन कम करते हैं जो हमारा पेन की वजह से या और किसी की वजह से, फ्रैक्शंस की वजह से ए आ चुका उसको घटाते हैं. इस तरह से हमारा खालिस वजन जो बी रीडिंग में एक्चुअल स्पेसिमेन का वजन है वो बी की शक्ल में आता है. फिर ट्रांसफर करने की वजह से सी जो होता है, जो सी का वजन होता है वो बी को हम कम करते हैं, क्योंकि सी में बॉयंट फोर्स का ऊपर का वो जो वजन है वो कम हो जाता है, क्योंकि उतना ही हमें पानी में मिलता है स्पेसिमेन का वजन, जो सी को बी एक्चुअल हवा में है और सी पानी का वजन जो कम हो जाता है. इस तरह से हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला जो है बी रीडिंग सेकंड माइनस रीडिंग फर्स्ट डिवाइड बाय रीडिंग सेकंड माइनस रीडिंग थर्ड, which is the final result for finding a specific gravity of mineral. This is for the today's class for finding the specific gravity with the help of Jouley's balance, especially for smaller minerals.